नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। डॉक्टर स्पीक जो कि आपका अपना कार्यक्रम है, क्योंकि आप इसमें कोविड-19 से जुड़े कोई भी आपके सवाल हो वो कर सकते हैं, उनका समाधान जान सकते हैं। कोई भी समस्या आपको हो, कोई भी प्रश्न आपके जहन में हो, आप इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा होता है, आप डायरेक्ट उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको सिर्फ उन नंबर्स पर फ़ोन करना है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया से भी हमसे जुड़ सकते हैं, तो ये नंबर मिलाइएगा और सोशल मीडिया से भी हमें जुड़िएगा और डॉक्टर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे सवाल पूछेगा। और मेरे साथ रहेंगी इस पूरे शो में मेरी सहयोगी मुनमुन। Yes, thanks Rama, and good afternoon to all of you. You're watching Dr. Speak. It's a live call-in show where you can call us and ask your questions on COVID-19. An expert panel of guests will be answering them for you. Also, you can log on to DT News' Facebook page and post your queries under the live link of Dr. Speak that you'll be able to see there. And joining us is an esteemed panel of guests. Dr. Parveer Agarwal, the Director International Cardiology, Fortis Escorts Heart Institute, Dr. Aparna Agarwal, Director Professor, Department of Medicine, Lady Harding Medical College, and Dr. Naresh Gupta, Medical Consultant, MAMC, are with us. I'll come to you. Dr. Parveer Agarwal, if you can hear us, the fact is that if you look at the overall picture in India, then there has been a constant decline of cases, except for 3 to 4 days that we saw in recent times when there was a little spike, but yesterday again there was a drop in cases. And we are aware that there are 3 states that have reported the highest number of daily cases yesterday itself: Rajasthan, Gujarat, as well as Himachal Pradesh. And to some of these states, Centre is also sending central teams to help them. What would you say needs to be done, especially in those states where there is a sudden spike now? See, as the people are now aware very much that what is going wrong with each state, why they are not performing good. You see, it is the basic public. You have to understand that how we have to control it. Government can help to a limit. Like now the things are there. The people are hiding symptoms. Like they have symptoms, they do not come to the doctor. They do not want to show, because if they are they are taking as a taboo that if they are declared the COVID positive, it's a problem. And once the few of them are lucky, they pass off the disease without any problem, but few of them are unlucky. Take the disease, which is really a bad one, when they come to the hospital. So they have to realize that, look, the screening is done for their benefit only. If some symptoms are there, they should go to the doctor and screen. What is happening in other states is that they are not reporting to the clinic. So how can they be diagnosed? So my request would be to the whole audience that, look, if the symptoms are there, or if they are exposed to people who have had virus, certainly they should have a check done. So that's how we can control the disease. Otherwise, it's a problem. And this problem right now is appearing under control, but things are still not very much controlled. That about 45,000 per day is not a less number. That if we just see the decline, we are seeing the declining number. Fine, it's okay. But we should now constantly on a decline for next say couple of weeks or maybe couple of months. Then only we can say that it is under control. बिल्कुल। डॉक्टर प्रवीर, आपसे जानना चाहेंगे, इस संक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो सभी संक्रमण के दायरे में आ सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, डायबिटिक हैं, या जिनको हार्ट डिजीज़ हैं, उनका संक्रमण का संभावना ज़्यादा रहती है, या जो सीनियर सिटीजन्स हैं। सर्दियां भी आ रही हैं, सर्दियों में भी जिन बीमारियों का नाम मैंने आपको गिनाया उसमें विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। सर्दियों को देखते हुए, कोविड को देखते हुए, और जिन स्टेट्स में अभी जो ज़्यादा स्पाइक इसका हुआ है उसको देखते हुए, किस तरह से जिनको हार्ट डिजीज़ है, जिनको जो डायबिटिक हैं, या जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको किस तरह से विशेष सावधानी की जरूरत है, और कितना जो खतरा है उनके लिए बढ़ जाता है? जैसे आपने कहा, संक्रमण के चांसेस ज्यादा है, ऐसा नहीं। संक्रमण के चांसेस उतने ही हैं जितने बाकी लोगों में, बट इसमें जो प्रेजेंटेशन ऑफ डिजीज है वो ज्यादा है। सपोजिंग दे कैन इन्फेक्टेड, देन दे हैव मोर सीरियस प्रॉब्लम्स, राइट? सो इन अ डायबिटिक एंड हार्ट डिजीज पेशेंट, आपने देखा होगा कि जितने भी आपका हार्ट डिजीज की प्रेजेंटेशन है, सारे के सारे कोविड में हो सकते हैं। And the things can get accentuated. Why? Because the thrombus formation is widespread, and one can have problems which are acute and difficult to deal with. बहुत आसान काम नहीं है इनको इलाज करना। तो अगर हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हार्ट का इलाज हमसे कर रहे हैं, हो क्या रहा है इसके अंदर, लोग हॉस्पिटल में आने डर रहे हैं।
उसमें क्या होता है कि डिजीज को इतना बढ़ा लेते हैं कि तब वो पहुंचते हैं तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी दर्शकों से कि जब कभी डिजीज चल रही है दवाइयां बंद ना करें। रेगुलर कंसल्टेशन में अगर फिजिकली नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कंसल्ट इज राइट नाउ ऑन, वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं, दवाइयों का आपका रिव्यू करा सकते हैं, कोई भी सिम्टम्स होते हैं उसका टेलीफोनिकली इलाज भी ले सकते हैं। और अगर जरूरत पड़े तो अस्पताल जाने से घबराने की बात नहीं, बिकॉज अस्पताल सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं आपके इलाज के लिए। उसमें जो भी कोविड पेशेंट्स हैं वो एक डिफरेंट वार्ड में है, ऐसा नहीं कि सब लोग कोविड से एक्सपोज हो जाएंगे। लोगों को खतरा ये लगता है कि सब अगर कोविड में गए तो वहां तो कोविड हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओपीडीज में भी पूरा स्क्रीन करके लिया जाता है, पेशेंट को देखा जाता है। Yes. और अगर इलाज टाइमली हो जाए तो खतरा कोई ज्यादा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि खतरे को हम पहले बढ़ने देते हैं, जब खतरा बहुत बढ़ जाता है तब समस्याएं बढ़ जाती हैं। जी, Dr. Aparna and Dr. Naresh are also with us. Dr. Aparna, questions have started coming in on our Facebook page. Kumar Prabhat is complaining that he's had this problem of sinusitis, which happened in January, and after that he took homeopathic treatment and he recovered, but again he's facing that problem. He's asking for a solution to that and also asking if he's at risk of contracting COVID-19. Your response, please. For how many days are you having sinusitis right now? We have limited information, as has been told to us on our Facebook page. He said that he had sinusitis. It began in January. Then he took homeopathic treatment. It was corrected for some time, but the problem is back on now. And he's asking what should he do and whether he's at risk of COVID-19 contraction. If it is a chronic problem, then it needs to be checked up by an ENT doctor once to rule out any chronic underlying problem. There may be a polyp or there may be some other problem which is leading out on to recurrent sinusitis or chronic sinusitis. So he should get it checked up by ENT once, and if that is clear, then the second thing that is a possibility is an allergy. So if he is prone to allergies, that could be another reason. That is again something where homeopathy will also work. And we have got drugs in allopathy which will also give him symptom relief. So he must consult an ENT doctor first, and if that is clear, if homeopathy had worked for him earlier, he can try that again. Regarding whether it could be COVID, these symptoms can occur in COVID also, provided they're short duration, then he has to see that. And especially if he has got contact with anybody. But if it is chronic, he must consult an ENT doctor. बिल्कुल डॉक्टर अपर्णा की सलाह हमारे दर्शक को मिल गई होगी। इसके साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये भी आता है कि इम्यूनिटी को जिस तरह से बूस्ट करने की बात कही गई है, इम्यूनिटी बूस्टअप करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए तमाम तरह की जो दवाइयाँ हैं या तमाम तरह के काढ़े या और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन हम पढ़ते हैं या उसकी जानकारी हमें फ्रेंड से मिलती है, डॉक्टर से भी कई बार मिलती है। और कई बार ये इस तरह से होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक साथ लेना शुरू कर देते हैं। क्या उसका भी साइड इफेक्ट कोई होता है या इसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए? डॉक्टर नरेश गुप्ता। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात करी है कि जब किसी चीज का हमारे पास पक्का इलाज नहीं होता है और बीमारी ज्यादा होती है तो हम सारी चीज लेने शुरू कर देते हैं कि कोई इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, कोई विटामिन है, कोई काढ़ा है, कोई टॉनिक है, और ये भी नहीं पहचान पाते हैं कि वही चीज जो है हम दूसरे रूप में, दूसरी टैबलेट में या दूसरे फॉर्मुलेशन में ले रहे हैं। इन सब के 2-3 नुकसान हो सकते हैं। एक तो ओवरडोजिंग ज्यादा हो सकती है, टॉक्सिसिटी आ सकती है। कोई भी चीज जब हम लेते हैं, कोई भी चीज, देखिए आप कोई भी चीज मैं बोल रहा हूँ, उसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, और अगर वो किसी मात्रा से ज्यादा ली जाएगी तो उसके साइड इफेक्ट और ज्यादा आएंगे। इसके साथ साथ एक चीज का और आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जितने इम्यूनिटी बूस्टर हैं ये सब फेल कर जाएंगे अगर आप बाकी एहतियात नहीं बरत रहे हैं। कोई इम्यूनिटी बूस्टर जो है सुपर इम्यूनिटी नहीं क्रिएट करता है। अगर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से इम्यूनिटी कम होती है तो जिसको कम विटामिन की जिसकी कमी है विटामिन की उसी को फायदा होगा, ये नहीं है कि जिसको कमी नहीं है उसको भी फायदा होगा। और ऐसी हालात में, ऐसे संदर्भ में इंसान ये सोचने लगता है कि मैंने तो आज 6 बूस्टर्स लिए हुए हैं, मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरे को शॉपिंग जाने दीजिए, मास्क भी मैं नीचे कर सकता हूँ। वो बहुत गलत बात होती है। तो इम्यूनिटी बूस्टर के
फिजिकल साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, और जो ये हमारी प्रिकॉशंस है उसमें लेट डाउन का भी फीचर आ सकता है, जिससे कि खतरा बढ़ सकता है। There's a caller who's joined us. Satish Kumar joins us from Delhi. जी पूछिए अपना सवाल. Please ask your question. सतीश जी अपना सवाल पूछिए. मैडम मैं 23 अक्टूबर को दीनदयाल में दिखाया था, कोरोना पॉजिटिव किया था उन्होंने, टेस्ट में पॉजिटिव आया था. उन्होंने सारा मुझे जो ट्रीटमेंट था दे दिया 5 दिन के लिए, फिर कहा कि अब 17 दिन का क्वारंटाइन करना. आज मैं आज 1 महीना हो गया उस सारे को. मैं ठीक हूँ, 6-7वें दिन से मैं सही हो गया, मुझे कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं. अब मैं नेगेटिव तो का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा मुझे? डॉक्टर अग्रवाल, आप इनका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से जो दर्शक हैं या बहुत से लोग हैं वो इस तरह का सवाल करते हैं कि हम ठीक हो गए हैं प्रॉपर क्वारंटीन के बाद, लेकिन उसका जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से ले सकते हैं, या क्या उसका सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है क्वारंटीन पीरियड के बाद? ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं, बट ये टेस्टिंग जरूर करा लेनी चाहिए इनको. ऑप्शन क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना दे आफ्टर सर्टेन पीरियड वो लोग जो है आपका दोबारा से कोरोना टेस्ट नहीं करते, कहते हैं आप ठीक हो गए तो फाइन. बट आई थिंक ऑलवेज एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आप नेगेटिव हुए नहीं. उससे आपको भी कॉन्फिडेंस आता है, आपकी फैमिली को भी कॉन्फिडेंस आता है. तो एक बार रीटेस्टिंग करा लेगा, रीटेस्टिंग इनकी नेगेटिव आती है तो वही एक सर्टिफिकेट है, और कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं होती, और कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इशू नहीं करती कि आप कोरोना नेगेटिव है. डॉक्टर नरेश गुप्ता, now there is a question from a user who's asking, continuous changing in weather is affecting people and causing fever and headaches with cough. How will one know that this is not COVID? See, when the weather is changing, it is getting colder. There are some more viral infections that come in. I mean, the classic would be influenza. There are other viruses, dozen of them that come in. Bacterial infections become more common. And one would see that during the winter months, there is so much of coughing going on because of the air pollution also that comes in. And somehow the smoking is not going down. That also brings out cough. All the coughs that appear in any of these situations would be similar to what you see in COVID. It does not mean that everything is COVID. But COVID is a viral infection which comes with a bang. Person was feeling all right, and suddenly he gets not feeling well, cough, fever, sore throat, whatever he gets. Whereas the other conditions tend to be more chronic. So every winter you get it after smoking, you get it when you wake up in the morning, you have symptoms like asthma. So those chronic conditions are separate. The question now comes, what about the other acute viral conditions like influenza? A doctor might be able to make some kind of a distinction. Okay, it appears to be more like COVID or more like influenza. Like if you have sense of smell knocking out, it does not occur in influenza. But let me tell you, whatever cough comes in influenza or COVID or other viral infections would appear to be same. There it becomes difficult. During the previous months, when we had only COVID, we knew that any cough is COVID unless proved otherwise. If you go in Delhi and the numbers are high, you still would say, okay, this is COVID unless proved otherwise. Once COVID comes down, then the others take over. And some of those features one would recall from their previous history. Okay, last winter I used to get like this, I smoke like that, I stay in this place. So those things can make a difference. So the best thing would be either you look into yourself and find out your history and consult with somebody who has been treating you in the past. If those kind of things are there, then it is easier. If you are in doubt, then we do the test for the COVID and the test for influenza and some other blood tests which can pick up some bacterial infections also. So then one has to go in for test not only for COVID, if COVID is negative or if some features are unusual, we do the other tests also. बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, शैलेंद्र हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं. जी शैलेंद्र, पूछिए अपना सवाल. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून मैम, मुझे लगभग 10 दिनों से सर्दी है, सिर्फ नाक से पानी आ रहा है और नाक से रात में और सुबह बंद हो जाती है. जी. और फिर मैं एक नेसिवियन ड्रॉप डालने के बाद में स्लीपिंग आना शुरू हो जाता है और नाक पूरा ढीला हो जाता है. तो मैं जानना चाहता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये 10 दिनों से सिर्फ सर्दी है, फीवर नहीं है और ऑक्सीजन लेवल 99 है. जी डॉक्टर अपर्णा, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? अगर आपके एरिया में कोविड ज्यादा है
तो फिर ये कोविड भी हो सकता है। अगर आपके इलाके में कोविड ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है, या आजकल जैसा भी डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा है कि इस सीज़न में दूसरे और वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को एक अलग कमरे में रखें, मास्क पहन के रखें, बाकी लोगों से अलग खाना खाएं। लेकिन अगर ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं या आपको सांस की तकलीफ होती है या कोई और तकलीफ होती है लाइक टाइटनेस इन चेस्ट या कुछ और, तो फिर आपको जरूर कंसल्ट करना चाहिए और टेस्टिंग भी करवानी चाहिए, क्योंकि कोविड भी हो सकता है। Yes, Dr. Naresh Gupta, there's a question on our Facebook page. My husband is 75 years old and he has to go out for some work and it is not feasible to hire a cab. How safe is it for him to pillion ride on a bike? What precautions should he take while pillion riding? See, one thing is 75-year young man would have the risk that in case there is infection, whether it is COVID or other, it can complicate into serious ailments. So unless it's very, very big requirement, one should not try to go out. Then if you go out at a time when it is not too cold. And if you're going out as a pillion rider, then you have to make sure that you save yourself as far as the standard masking procedures are concerned. So you have the masking, along with the masking, you must cover your neck and head and body also, because the weather is cold these days. And you must also use the social distancing. So when you're doing with the pillion rider, you can see how well can you be. I don't know whether the pillion rider, you are on a scooter or on a motorbike where the other person also comes from your family. But if it is one of those commercial ones, that risk remains. Having said it, being a pillion rider is otherwise a safe avenue, in the sense that you are into a naturally ventilated area. So if you are a pillion rider, it is safer than, let's say, a closed bus or a taxi also. But if you are a pillion rider and you are going through a crowded marketplace, then it is worse than a taxi or a bus. So never go into areas which are crowded, where social distancing is difficult, where many persons of different families or different areas, backgrounds are coming and breathing on you, or coughing, or there is loud noise there. Those you must avoid. And finish your job as soon as possible. Come back, discard or wash your mask. Take hand hygiene and those soap and water cleaning of the face, and you should be fine, so long as you don't spend more time. And when we say spend time, these days we believe that if one spends more than 15 minutes in an area where social distancing is not very good, that is a risk. And mind you, this 15 minutes doesn't need to be in one go. It could be you spend 5 minutes in the morning or 2 minutes in the afternoon, and then you are going on pillion riding and you spend 12 minutes there. That will become difficult. So total amount allowed in a day would be 15 minutes. Keep that in mind. If you have done it, postpone it, delay it, so that you don't suffer. You would stay safe. And at this age, also remember that one tends to get other diseases for which there are treatments and there are vaccines. So at 75, certain vaccines we advise them routinely every year, or maybe as and when need be. So he should be in touch with his doctor to make sure that he gets the vaccines. Sometimes we give preventive medication. We do not know his background, whether he has comorbid conditions or he is a smoker. But those things also he should take care of. बिल्कुल। और भूप सिंह हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गए हैं। जी भूप सिंह जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे को कंट्री में कोरोना हुआ था और मैं पूछना चाहता हूँ दोबारा मेरे को होने का चांस है कि एंटीबॉडी तैयार हो जाती है ऑटोमेटिक शरीर में? जी डॉक्टर प्रवीर, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? या बिल्कुल, इसमें अभी तक तो डेटा ही कहता है कि चांसेस तो बहुत ही कम है कि दोबारा से कोरोना को होगा, लेकिन फिर भी एंटीबॉडी टेस्टिंग करा के देखना चाहिए हमारा क्या लेवल है, क्या अटेन किया है। कुछ लोगों में एंटीबॉडी लेवल बहुत अच्छे अटेन हुए हैं, कुछ में अटेन नहीं हुआ है, बट स्टिल अभी चांसेस बहुत ही ब्लीक हैं कि दोबारा से इनको कोरोना हो। जी डॉक्टर, a follow-up question on that. That does one need to have neutralizing or protective antibodies in order to have longer term protection as far as
herd immunity is concerned, because it's often talked about that once you are infected, that then the chances of your getting an infection again are really dim, which means that if there are many people of this kind, then that particular city or country can have herd immunity. But I wanted to know that does one need to have a particular type of antibodies called protective or neutralizing antibodies for long lasting immunity? Yeah, that's an IgG antibody now. We are testing it out right now. And you see, the response of each body is different. हर बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट है. कुछ लोगों को कोरोना होता है, अच्छी एंटीबॉडी आ जाती है. कुछ लोगों को कोरोना होता है, अच्छी एंटीबॉडी नहीं आती. राइट, इवन जो डोनर्स भी होते हैं उनको भी देखा जाता है कि एंटीबॉडी टाइटर अगर अच्छा है तभी उनका प्लाज्मा लिया जाए, तभी उनको दिया जाए. और ये किसी के हाथ में नहीं होता. अपना इम्यून सिस्टम है, हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं नहीं मालूम. लेकिन ये अभी तक देखा गया है कि जिनको की मेजोरिटी ऑफ केसेस, जिनको भी एक बार कोरोना हो चुका है, एंटीबॉडी टाइटर चाहे कम हो या ज्यादा हो, उनके दोबारा से डिजीज कॉन्ट्रैक्ट करने के चांसेस बहुत ही कम है. अभी रिसेंटली कुछ केसेस जरूर आए हैं कि जिनको दोबारा से इन्फेक्शन हुआ है. राइट, तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि दिस वायरस मे बी चेंजिंग द स्ट्रेन. इफ इट चेंजिंग द स्ट्रेन इट्स अ मेजर प्रॉब्लम. राइट, अभी डेटा बहुत क्लियर नहीं है, बट स्टिल देयर आर सम केसेस हु आर कमिंग विद रीइंफेक्शन एंड a reasonable antibody titer in the first infection. So do protective or neutralizing antibodies wane over a period of time? अभी तक जो WHO की रिपोर्ट है आपसे कहते हैं कि 3 महीने तक तो प्रोडक्शन देती है. उसके बियॉन्ड देती है नहीं देती है, अभी लोगों ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है. Even with regard to protective or IgG antibodies, you are saying? Yes, it is for that only. If they are there, they are certainly sure that 3 months are fine, but beyond 3 months, क्या ये एंटीबॉडी सस्टेन होंगी, बढ़ेंगी, घटेंगी, किसी को नहीं मालूम है. This virus is too new to just tell these questions at length. So the time will tell exactly that if the reinfection is very high, then we have to test it out कि whether these patients who were reinfected, कि इनकी पहले बार की इन्फेक्शन बाद कैसा एंटीबॉडी टाइटर आया था और ये टाइम के साथ डिक्लाइन तो नहीं कर रहा है. जी, और दर्शक भी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं. कुमार प्रभात फेसबुक से जुड़े हुए हैं और वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे ये समस्या दोबारा हो गई है. क्या समस्या हुई है वो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि मेरी नाक से पानी आता रहता है और होम्योपैथिक का इलाज भी चल रहा है, लेकिन मुझे अभी तक फायदा नहीं है. तो इसका क्या उपाय है, क्या बचाव हो सकता है? और इनको कंफ्यूजन है कि ये क्या हो सकता है. डॉक्टर अपर्णा, अगर काफी टाइम से है तो इट इज अनलाइकली टू बी कोविड. In fact, it is not likely to be COVID, and it is more likely to be either related to allergy या फिर pollution related भी हो सकता है. तो एलर्जी का अगर इनका इलाज चल रहा है, होम्योपैथी अगर नहीं फर्क पड़ा है, तो they can consult the same doctor again or another doctor if it is not working and check with that. और नहीं तो एलोपैथी डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें एलर्जी के लिए एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं. इफ इट इज टू फ्यू एलर्जेंस तो पता चल जाएगा कि किससे एलर्जी होती है. और दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि सिम्टम रिलीफ देती हैं एलोपैथी में, बट होम्योपैथी वाले का इलाज चल रहा है तो बेटर टू कंसल्ट द सेम डॉक्टर or another doctor and try that. Dr. Naresh Gupta, Aman Jaiswal is asking on Facebook that sometimes even when we are following the regulations of wearing face masks, we are getting infected by COVID-19, and how would one know that one has COVID if there are no symptoms? See, that's a very good question. So there are two parts as I can see. One, the Aman is raising an issue that even when you are wearing a face mask, you are still contracting COVID. That is true. And let me tell him also, when the vaccine also comes, even that is not 100% guarantee. So all the precautions that we suggest are not 100% in their own right, suo moto. So mask is not 100%, and that is why we say you must observe cough etiquettes also, speaking etiquettes also. Mask is not sufficient by itself 100%. That's why we say you must have this soap and water for washing hands and face. It also is not enough. That's why we speak of these contact preventive strategies. So that means mask is not sufficient. Similarly, another very important thing is symptoms are not sufficient to suggest that somebody has got COVID. And his question is, how will I come to know whether I have got a COVID if I have no symptoms? Now, symptoms will not occur under two conditions. One we call asymptomatic, because the body has taken care
that it fights the virus out and does not let the virus produce any symptoms. The other is the infection is set in, but the symptoms are going to take another couple of days, which we call pre-symptomatic. Both these scenarios, the sad story is when the person does not have symptoms because he may not develop any time or because he'll develop a couple of days later. During that time, that person is transmitting infection to others. And that transmission of infection to others need not be asymptomatic. That is very important. A person who is asymptomatic but harboring and throwing out virus of COVID will not give an infection to another person which is going to be asymptomatic. It can be life-threatening. And that is why you would see that some of these strategies that government adopts, especially when the numbers are very low or numbers are high, is to catch and find out these asymptomatic cases. Because if you can contain these asymptomatic cases, you can save others from not only contracting infection, but also getting deadly infections. So it's the only way to find out about asymptomatic infection is if you are in this setting where you could have been exposed to somebody who is harboring the virus, get your test done, and that would show whether one is having asymptomatic infection or not. बिल्कुल टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। गौरव सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। गौरव जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मुझे तो यही पूछना था कि मतलब मास्क जो है 95 हम क्या प्रेफर कर सकते हैं या उसको लगाने का क्या तरीका हो, या मतलब क्या मास्क से भी चांसेस हैं कि कोई वायरल पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर वो आ सकता है जिससे हम कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं? बिल्कुल, ये तो हम लगातार बताते रहते हैं, लेकिन हम डॉक्टर से भी आपकी बात करा देते हैं। डॉक्टर प्रवीर, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मास्क का प्रॉब्लम क्या है कि लोग मास्क को एक तो लगाने का तरीका नहीं, बिल्कुल सही सवाल उठाए, इनको पता होना चाहिए। और अगर नेट पे जाते हैं, साइट मिल जाती है, बहुत ही आसान तरीका मास्क पहनने का होता है जो मास्क के आउटर सर्फेस को टच नहीं करना होता। और मास्क को ऐसा नहीं कि हमने एक बार ले लिया तो उसको हम हफ्तों तक यूज करते रहें। मास्क को रोटेट भी करना है, और कहने का मतलब ये कि मैक्सिमम एक मास्क को 3 बार यूज करना चाहिए, उसके बिना उसको यूज नहीं करना चाहिए। राइट, अक्सर आपने देखा होगा लोग मास्क को लगाया था कि लगता है कि मास्क महीनों से एक ही मास्क लगा हुआ है। तो दिस प्रोटेक्शन गोज अवे आफ्टर कपल ऑफ यूजेस ऑफ दिस मास्क। और मास्क की आउटर, जैसे कि मास्क को उतारते हैं, लगाते हैं, अक्सर हम लोग आउटर सर्फेस को छूते रहते हैं। तो दैट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम। यू सी द वायरस पार्टिकल्स आर ऑन आउटर सर्फेस ऑफ द मास्क। एंड जब एक बार मास्क से आप बाहर के सर्फेस को छूते हैं, उसके बाद फेस से हाथ टच करते हैं, कहीं टच करते हैं, तो आप इन्फेक्शन हो सकता है आपको। तो मास्क को पहनना और प्रिजर्व करना एक बहुत ही संभाल के करना होता है, जिसको काफी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी। तो मास्क को पहनिए, उसको एक पैक में रखिए लाके, अगर रीयूज करना चाहते हैं, और उसको फिर 3rd या 4th डे दोबारा निकालेंगे। तो ये सब चीजें सबको पता होनी चाहिए। और ये तो इतना नेट पे पड़ा हुआ है, अगर आप बैठ के देखें उसको चीज पता लग जाती है हमें। कम से कम हमारे पास 4 मास्क रोटेशन में होने चाहिए, जिससे कि 4थे दिन हम दोबारा से पहले मास्क को यूज करें। ये एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। अगर इफ यू आर वेयरिंग द सेम मास्क, इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और बाकी तो सरफेस जो उसकी होती है वो काफी बैक्टीरिया वायरस लाइक पार्टिकल्स कैरी करती है, और अपने हाथ से छुआ और दोबारा उसको टच करते हैं तो यू कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन एंड यू कैन कॉन्ट्रैक्ट द इन्फेक्शन आल्सो। बिल्कुल, मास्क पहनना चाहिए और मास्क सही तरीके से पहनना चाहिए। और हम अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि लगातार डॉक्टर्स जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं उन पर कॉल कीजिए, और फेसबुक से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया से, और आप डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि कोई भी आपकी समस्या है या किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन है तो आप उसका हल पा सकते हैं। Absolutely, and like one of the doctors said, if you are wearing masks, which you must, then at least keep 4 washable masks with you so that you can keep washing them and keep wearing them interchangeably. And even once the vaccine comes, you don't have to stop using the precautions or following the precautions like washing your hands regularly, using hand sanitizers. We'll take a break at this point in time. We'll be back with more. Remember the 2 numbers on which you can call us, and our Facebook page on which you can ask us your questions. Stay tuned. अब ले ही आओ ड्रीम कार का। अब आप चांस के लिए नहीं, चांस आपके लिए रुका है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन पे दे रहा है 0.25% कंसेशन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड, 0 foreclosure charges and higher amount of eligibility. So now own your dream car with Bank of Baroda today.
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर स्पीक में। और दर्शकों को हम फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उन पर कॉल करिए, सोशल मीडिया से हमसे जुड़िए और सवाल पूछिए। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमारे साथ डॉक्टर्स लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अपर्णा, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से मौसम में अब बदलाव आ रहे हैं और उससे संबंधित बहुत सारी एलर्जीज होती हैं और कोविड भी साथ में एक बड़ी समस्या के रूप में है, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोविड और जो अदर एलर्जीज हैं वो एक साथ हो सकती हैं, और एक साथ हो सकती हैं तो ना हो या उसमें क्या बचाव हो, ये थोड़ा समझाइए। हमको पोल्यूशन अवॉइड करनी है, उसके लिए वही जो हम घर के अंदर रहें तो बेटर है, बाहर जाएं तो बिना मास्क के ना जाएं, और मास्क भी ऐसा जो कि उसको प्रिवेंट करे। और सेकंड, दोनों का पेपर्स में सब लोग पढ़ रहे होंगे कि पोल्यूशन के टाइम पर कोविड का इन्फेक्शन भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। विंटर में भी प्रोबेबली इट इज़ मोर, तो दैट इज़ वन रीज़न why COVID is increasing. The other of course is festival rush, जो मार्केट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है पहले फेस्टिवल्स की वजह से, उसका भी अभी इफेक्ट देखने में आ रहा है। लकीली 2 दिन से थोड़ा सा कम हुआ है, वी होप दिस ट्रेंड इज मेंटेन्ड, लेकिन पोल्यूशन और उसका प्रिवेंशन घर के अंदर रहे वो बेस्ट है। आजकल मशीन्स आ रही हैं जो कि एयर को प्यूरिफाई करती हैं, जिन घरों में ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको सांस की तकलीफ है वो वैसी मशीन्स रख सकते हैं, एयर प्यूरिफायर्स जो कहते हैं, विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द पोल्यूटेंट्स इनसाइड द हाउस। और घर के बाहर जैसा बोला है जितना कम टाइम रह सके उतना बेहतर है। जी, another question has come in. Rakesh Kumar Khanna is asking Dr. Naresh Gupta कि वो और उनकी वाइफ पॉजिटिव हैं पिछले 5 दिनों से, लेकिन अब उनको काफ़ी बेटर लग रहा है। वो पूछ रहे हैं कि घर में सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है क्या? देखिए, ऐसा है कि जो 5 दिन से पॉजिटिव हैं उनका अभी भी थोड़ा रिस्क रहता है कि दूसरों को दे सकते हैं। अब घर में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों को हो गया है तो वो एक दूसरे को दोबारा नहीं देंगे। जैसे ये सवाल उठा था, दोबारा किसी को ऐसे इन्फेक्शन आसानी से नहीं लगता है और री पॉजिटिविटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन घर में बच्चे भी हो सकते हैं, काम करने वाले भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अगर बाकी लोग घर में हैं तो इनको सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि वो कह रहे हैं बाकी लोग घर में नहीं है, सिर्फ वही 2 रहते हैं। अगर 2 लोग रहते हैं तो उनको ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें, ये बार बार सवाल आप भी उठा रहे हैं और लोगों से उठ के आ रहा है श्रोताओं से, कि इस मौसम में एयर पोल्यूशन, दूसरे इन्फेक्शन और सर्दी का प्रकोप भी है। तो ये ध्यान रखिए कि इन चारों का जो बचाव है उसका कॉमन बचाव है। जो मास्क है वो ये नहीं देखता कि मैं कोविड को बचा रहा हूँ और इन्फ्लुएंजा को नहीं बचा रहा हूँ या दूसरे इन्फेक्शन को नहीं बचा रहा हूँ या पोल्यूशन को नहीं बचा रहा हूँ। और यही सोशल डिस्टेंसिंग में इन्फेक्शन की भूमिका होती है। तो वो आप बाकियों के लिए भी रखेंगे, क्योंकि एक को एक इन्फेक्शन हो सकती है, दूसरी ना भी हो रही हो। बट जनरली फॉर कोविड अगर आप में से 2 लोग हैं, एक को है और एक को नहीं है, उसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सब बचाव बाकी चीजों से भी आपकी रक्षा करेंगे। बिल्कुल, तो अपना जवाब मिल गया होगा दर्शक को। और हमारे साथ पुनीत जैन जुड़े हुए हैं आगरा से। पुनीत जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद इस फैसिलिटी के लिए। मेरा सवाल ये था कि कोविड से बचने के लिए मैं अपने परिवार को बार बार बोलता हूँ कि वो गर्म पानी का बफारा लें। मैं वो जानना चाह रहा था कि इसका कितना फायदा है और कोई साइड इफेक्ट है या नहीं, और अगर फ्रिक्वेंसी बता सके तो और भी अच्छा होगा। डॉक्टर अपर्णा, इसका फायदा कितना है वो किसी स्टडी से प्रूवन नहीं है। आयुर्वेदा में आयुष मिनिस्ट्री कहती है कि गर्म पानी लेने से इट प्रोबेबली हेल्प्स। नुकसान डेफिनेटली नहीं है, अनलेस पानी बहुत ज्यादा गर्म हो और आपकी जीभ या तलवा जल जाए तो अलग बात है। अगर पानी ल्यूकवार्म है तो उसका नुकसान कोई नहीं है, तो आपको नुकसान के डरने के नहीं है। और जहां तक बात इसकी है कि कितना % इफेक्टिव है या प्रिवेंट करता है, तो ऐसी कोई स्टडीज नहीं है जो ये बता सकें कि ये कितना % इफेक्टिव है या कितना प्रिवेंट कर सकता है।
बिल्कुल। और लकी विज हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक से, और उन्होंने कहा है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आंसर इसका हिंदी में दीजिएगा। हालांकि सवाल उन्होंने अंग्रेजी में पूछा है, और वो पूछते हैं, इज़ देयर any correlation between blood clotting issue and COVID complications? और वो पूछ रहे हैं कि what segment of patients are more prone to blood clotting? and third उनका सवाल है कि he's asking about lifestyle, normal healthy lifestyle. डॉक्टर प्रवीर, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? इन्होंने कहा है कि हिंदी में जवाब दें। बिल्कुल, इनका सवाल बहुत ही अच्छा है कि इन्होंने पूछा कि जो थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कैसे होते हैं। कोविड में ये पता है कि सारे थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन, क्लॉट कहीं भी किसी भी शरीर के हिस्से में बन सकता है, ये प्रो थ्रोम्बोटिक हो जाते हैं। और जिनमें डिजीज बहुत सीवियर होती है उनमें थ्रोम्बस कहीं भी बन सकता है, हार्ट की आर्टरी में बन सकता है, वेन में बन सकता है, नेक की आर्टरी में कहीं भी बन सकता है। और एक बार इस थ्रोम्बोटिक स्टेट में चले जाते हैं तो उसके लिए इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। दूसरा सवाल, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं फिर की तकलीफ होने के, तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉन पेशेंट हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो जितना भी इलाज है उसको चलने में, उसको बिल्कुल भी ना रोके, वो ये प्रिवेंशन है। और रात उसको थोड़ा एक्सेंचुएट करना पड़ता है, उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। अगर कोई ऐसा हार्ट का मरीज जो पहले से नॉन दवाइयाँ ले रहा है तो उसकी दवाएं स्टॉप तो नहीं करते हैं और कुछ दवाएं और ऐड करते हैं जिससे कि थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन हुए भी तो कम हुए, और ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एक और उन्होंने पूछा है कि ब्लड क्लॉटिंग को अवॉइड करने के लिए नेचुरल फूड में के क्या सोर्सेज हो सकते हैं? ऐसा कुछ स्टडीज तो नहीं है कि नेचुरल फूड में क्या सोर्सेज हो सकते हैं, लाइक आप ये तो बताना मुश्किल है, बट हेल्दी फूड इज ऑलवेज एडवाइस, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो। बट कोई भी ऐसा फूड जो बताया जाए जिससे थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन कम हो जाते हैं, ये तो अभी कोई इसका डिटेल तो हम लोगों के पास नहीं है। पर हेल्दी लाइफस्टाइल से काफी इस पर जो है लगाना है। हेल्दी लाइफस्टाइल तो हर चीज के लिए अच्छा है, बट वेदर इट इज लाइक हमारे लिए प्रोटेक्शन है थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस के लिए, तो ये तो कहना मुश्किल होगा। जी। Nava Kumar is asking from Assam that he has respiratory disease for the last 3 years. It's difficult for him to put any mask and he feels shortness of breath while talking. What should he do? Would you like to respond, Dr. Naresh Gupta? Yeah, I think this is a very serious matter. He can't take it lightly. One is, if he is running shortness of breath for 3 years and he has the respiratory problem, as he says, it has nothing to do with COVID. But COVID, if it occurs in this scenario, on top of it, will make it much worse. Naturally, he has got a problem which pertains to his chest. And what kind of a disease it is cannot be said on the media, because shortness of breath would occur from diseases of the lungs, as also from diseases of the heart, as also from diseases of the blood. So most commonly, it is either a heart disease or a chest disease. It is possible if he's young, it would be more like chest disease. But then what is the condition of the lung and the heart and the whole chest has to be assessed before one can suggest any treatment. One thing is certain, once somebody has a problem like this, whatever be the underlying cause, they have to take greater precautions for saving themselves from COVID and COVID-like infections. So he must observe, if he can't do the masking, he can still do the cleanliness, and he must remember that sometimes when you cough, if there is an infection, like tuberculosis also can cause it. If there is an infection, it should not be allowed to spread to others. So he must consult a doctor or a hospital as soon as possible to have full assessment. बिल्कुल। और अनिमेश कुमार हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं फेसबुक से, जिन्होंने पूछा है कि क्या ट्रेन में सफ़र करना, एसी में सफ़र करना सेफ होगा या फिर प्लेन में, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि वेंटिलेशन के लिए फ्रेश एयर का इन होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अपर्णा, किस तरह से आप इनकी समस्या का समाधान करना चाहेंगे? ये पब्लिक ट्रैवल में रिस्क है, चाहे फ्लाइट में हम ट्रैवल करें चाहे ट्रेन में ट्रैवल करें। एंड हैविंग सेड दैट, अभी इन लोगों ने फ्लाइट्स में, ट्रेन्स में, सब में हेपा फिल्टर्स लगाए हैं एसी उसमें, जो वायरस पार्टिकल्स को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम गोइंग इनटू द कंपार्टमेंट। लेकिन सब में, फ्लाइट में भी आप जाएं, ट्रेन में भी जाएं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो इट इज नॉट जस्ट थ्रू द वेंटिलेशन सिस्टम, but you can get infection through other people who may be asymptomatic.
या जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं और उन्होंने हाइड किया हुआ डिक्लेयर नहीं किया है, तो इन चीज़ों से इन्फेक्शन का रिस्क है। तो डेफिनेटली इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ट्रैवल तभी कीजिए अगर बहुत इसेंशियल है, और इसेंशियल में भी फिर आपको पूरे प्रिकॉशंस बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं। मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, सीट का अपने आसपास का एरिया सैनिटाइज करिए, डिस्टेंस जितना मेंटेन कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि पूरा जो हम लोग 2 मीटर बोलते हैं उतना पॉसिबल नहीं है इन पब्लिक प्लेसेस, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में। जितना मेंटेन कर सकते हैं उतना मेंटेन करिए, जितना अलग रह सकते हैं अपने को पैसेंजर से उतना अलग रहने की कोशिश करनी चाहिए। फेस शील्ड कई लोग यूज करते हैं जो फ्लाइट में जाते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं जो फ्लाइट में जाते हैं, और एक हैंड सैनिटाइजर की बोतल अवश्य अपने साथ रखें जो बार बार आप अपने हैंड सैनिटाइज कर सकें। There's a caller who's joined us, राजेश हमारे साथ जुड़े हैं वेस्ट बंगाल से। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, पूछिए अपना सवाल। मैंने पल्स मीटर में चेक किया, मेरी पल्स 99, हार्ट बीट 99 और पल्स 110 है, क्या ये ठीक है? डॉक्टर परवीर? हाँ, ये ठीक है। कुछ का एंजाइटी की वजह से पल्स रेट बढ़ा हुआ है, सैचुरेशन ठीक आ रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रवीण, ये भी जानना चाहेंगे कि पल्स से रिलेटेड ही बहुत सारे सवाल जो हैं दर्शकों के आते हैं अलग अलग। कई बार जो नए दर्शक जुड़ते हैं उनके भी ये सवाल होते हैं जब उनको पता लगता है, तो थोड़ा सा आपसे इससे जानना चाहेंगे कि इसका कितना संबंध है जो पल्स रेट का, और जो मानक पल्स रेट है वो क्या होना चाहिए? नॉर्मल जो पल्स रेट कहा जाता है इन रेस्टिंग कंडीशन और मिनिमल एक्टिविटी पे इट शुड बी अराउंड 70 और 90 के बीच में उसको होना चाहिए, राइट। कुछ लोगों की पल्स रेट इनहेरेंटली जो एंजाइटी वाले होते हैं पल्स रेट ज्यादा रहती है, 100 भी रह सकती है, 110 भी रह सकती है, लेकिन इनको चिंता का विषय नहीं होता बिकॉज पता है कि एंजाइटी का नेचर है इनका। कुछ लोगों की पल्स रेट, जैसे कि हार्ट के मरीज हैं, उनमें हमें पल्स रेट को लो मेंटेन करना होता है, क्योंकि जितना आप पल्स को लो मेंटेन करेंगे उतना हार्ट के ऊपर आपका स्ट्रेस कम आता है। योर हार्ट इज like has to supply less of oxygen, right? So इनके सवाल जगह पहले देखूं मैं, जो उन्होंने पूछा कि इनका 110 पल्स रेट है और पल्स रेट 90, इनको कोई घबराने वाली बात नहीं। सपोज कि किसी आदमी का लाइक या किसी पर्सन का पल्स रेट ज्यादा हो जाता है ऑन द एक्टिविटी विच इज मच बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज, राइट, तो उसको पैल्पिटेशन फील होती है, लगता है कि हाथ बहुत तेज धड़क रहा है और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसको कंसल्ट जरूर करना चाहिए। कुछ लोगों में हार्ट की बीमारी में जैसे कि आपका पल्स रेट बढ़ता है तो सिम्टम आने लगते हैं, उनको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होने लगता है, उनको सांस की डिफिकल्टी होने लगती है, तो ये एंजाइना का सिम्टम भी होता है कि जिसमें कि पल्स रेट बढ़ी और वहीं पे हमें तकलीफ होने लगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हार्ट के रेटों मरीजों को कहते हैं कि पल्स रेट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो दवाइयां ऐसी होती हैं देने से हार्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है बाई सर्टेन प्रॉब्लम, राइट। बाकी पल्स रेट का कंट्रोल करना लाइक आपके हाथ में। सपोजिंग आप एक रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पल्स रेट आप अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना पल्स रेट आपको कम मेंटेन होता है। जितना आपका सेडेंटरी एक्टिविटीज हैं उनमें आपका पल्स रेट थोड़ा सा हाई मेंटेन होता है। बट अगर 100 तक भी हार्ट रेट जा रहा है, 110 तक भी जा रहा है, तो कोई चिंता का विषय नहीं, अनलेस कुछ सिम्टम्स साथ में हो रहे हैं। डॉक्टर नरेश, there's a question from Pratyush Sinha. He's saying that he's COVID positive. He tested positive on the 2nd of November. Then after 17 days of quarantine, he got himself tested on 20th November, 20 November, and found himself to be COVID positive again. I still feel heaviness in the chest and weakness. My oxygen saturation level goes down to 93 to 94% while lying on the bed, but improves to 95 to 97%. Whether I need to get CT scan done, and why was I found to be COVID positive after 18 days? Also, whether I can infect others after 20 days from the first check. Yes, I think Pratyush has raised a very valid question, and everybody should be aware of this. That COVID is not like run-of-the-mill viruses, which you see seasonal viruses. You know, we used to say, oh, I've got a cold, it'll go away in 3, 4, 5 days time. 5 days is usual, 7 days is maximum. But this virus is not like that. It can get on into the body for weeks and months. Lungs is one area where it can go on for weeks and months. Gut is another area where it can go on for several months. So if person like Pratyush is running breathlessness and is still not feeling well, and his oxygen saturation is going down,
and he is testing positive again after 17-18 days, that means the disease is still active in his body. It is not dead disease. And his disease would go on positive so long as he does not recover from it. And once the oxygen level comes down to 92, 93, it is not just fall by 5%. It is much more serious than that. I would suggest that Piyush will not only need some more tests, CT chest might be just one of them, he'll need many more tests, but more importantly, he will need intervention. He should not undermine the gravity of the situation. He should get in touch. He'll probably need hospitalization and some oxygen supplementation while being assessed as to what all are the reasons for the oxygen going down and his test remaining positive. But remember, the test can remain positive after 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 weeks. Yes. रह सकता है। हमारे साथ टीएस रावत कुल्लू से जुड़े हुए हैं। जी रावत जी, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, मेरा बेटे को कोविड हुआ था सितंबर में और अभी वो ठीक ठाक हैं। क्या वो अभी हम लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि अभी वो बैंक में काम करते हैं और वहाँ पे पब्लिक से डीलिंग होती है, वो अपना वो पूरा तो करते हैं, मतलब अब क्या ही कैन ही इन्फेक्ट अस अगेन? डॉक्टर अपर्णा, 90 डेज तक जब कोविड हुआ है तो डेफिनेटली उनके चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन अगेन आर नॉट देयर। आफ्टर 90 डेज अगर उनको कोविड के सिम्टम्स दोबारा होते हैं, देन वी कीप इन माइंड दैट इन रेयर केसेस इट कुड बी री इन्फेक्शन। जैसा बताया गया है ऑलरेडी कि री इन्फेक्शन के चांसेस काफी कम होते हैं। हम लोग एंटीबॉडी लेवल से मेजर करते हैं कि बॉडी में इम्यूनिटी है कि नहीं है। सेकेंड थिंग इज मेमोरी टी सेल्स विच लास्ट मच लॉन्गर। वी डोंट हैव फुल डेटा कि उसमें कितने टाइम तक हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है बॉडी में, बट देयर आर लॉट्स ऑफ स्टडीज विच से कि इम्यूनिटी इज लॉन्गर than 3 to 6 months, even in patients with low levels of antibodies. तो आपको फिलहाल तो कोई भी डरने की बात नहीं है। अगर वो 3 महीने के बाद में सिम्टोमेटिक होते हैं जो कोविड इंडिकेट करता हो, तब उनका टेस्ट करवा लीजिए। फिलहाल आपको डरने की कोई बात नहीं। जी, शुभम अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फेसबुक से इन्होंने सवाल पूछा है। इन्होंने कहा है कि फ्रॉम पास्ट 3 months आई एम सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। व्हेनेवर आई ईट आई स्मेल एंड टेस्ट लाइक बर्निंग, सो प्लीज सजेस्ट हाउ मच टाइम इट विल टेक। डॉक्टर नरेश, आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? See, one thing I would like to tell Shubham is that loss of smell or loss of taste is not only from COVID. COVID is just one of the conditions where we can get this. And this occurs as a part of a big syndrome. So COVID usually, when it improves, the loss of smell and taste would also improve. It can take few weeks, but certainly it would not take 3 months if it's going on. And the taste and smell comes from the mouth, the tongue, and the nose. Those areas we have to examine whether there is any other pre-existing condition which would be causing loss of smell or even bad smell. So we actually need to go into its detail, but the smell change that occurs in COVID usually would go away after a few weeks and does not usually stay for a few months. There's a caller who's joined us, Kamal Khandelwal from Mumbai. Please ask your question. Puchiye. Okay, hi doctor. Good afternoon. I am Vimal Khandelwal. Now my son was tested positive, and he had mild symptoms like thoda sa bukhar tha, and he had a mild headache for a day or two. Then since then he is perfectly fine. So do we need to do a testing again, or it's okay to quarantine for 14 days and then he can come out? Dr. Aparna? It is okay to quarantine for 17 days actually, isolate for 17 days as per the Government of India guidelines, and then he can come out. And you don't need to test again, because if he has become
asymptomatic now after 2 to 3 days. Virus infectivity lasts about 7 to 10 days maximum. So the new guidelines say that you don't need to test a patient again to declare him COVID negative. If the patient has improved after 17 days isolation, he is free to mix with everyone. Yes, please take care, ma'am. There are more questions that have come in. Vinod Ahir is asking, how effective is the use of hand gloves in comparison to sanitizing the hands frequently? What is more safe, use of hand gloves or hand sanitizers? Dr. Naresh Gupta? It's very important. Vinodji, hand gloves do nothing to the virus, COVID or otherwise. So if you are using hand gloves, your hands are protected, but gloves are covered with just like the dust that you can see, viruses that you can't see also get onto this. When you take off the gloves, then you touch them like this, and the moment you touch, those outer viruses will get onto your hands and will cause problem. So virus stays there. Gloves are very temporary for different protection, more from dust and dirt. But COVID will not get affected. It will save you only as long as you are wearing it. These are usually not disposable gloves, what we use in surgery. So if you are not using that, then it doesn't save you so much. Using sanitizers has a different effect. Sanitizers are supposed to knock out the virus. So even if the virus is there and you use sanitizer, once the alcohol is there 60-70% or more, then that would knock out the virus and the virus will not be able to infect. It's not that virus, once it is there on the body, definitely is going to cause the disease. It has to get inside the body. In the same breath, I would like to tell Vinod that sanitizer is effective, but even more effective is soap and water. Remember that this soap and water that we use and we keep talking about, it actually destroys the virus. And how it destroys the virus is, if you ever wash your hands and there is some oil, little bit of oil on your hand, and you put a little bit of soap, it goes away. Virus has got a little bit of oil around it, the envelope. And the moment you put a little bit of soap, that is knocked out and the virus goes away. So soap and water is number one, sanitizer is number two, and gloves would be last. जी, राघव भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं और इन्होंने पूछा है कि विल एवरीवन बी इन्फेक्टेड विद कोविड-19। डॉक्टर प्रवीर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सी इस तरह की बात सोशल मीडिया पर या बहुत जगह से इस तरह की रिपोर्ट्स आ सकती हैं कि नहीं, कोविड-19 सबको एक बार होना ही होना है, जरूर होना है, उसी से संबंधित इसका सवाल है। तो ये जो एक डर है, इसका क्या समाधान आप बताना चाहेंगे? मैम, ये सवाल तो बहुत ही मुश्किल है, इसमें किसी को भी नहीं पता है, लेकिन ये कहता है कि हार्ड इम्यूनिटी अगर एक किसी भी पॉपुलेशन का अब 65% पॉपुलेशन अगर इन्फेक्ट हो जाए तो उसमें हार्ड इम्यूनिटी आ जाती है। तो उसके बाद अगर इन्फेक्शन होता भी है तो यू आपको प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी ऑलरेडी देयर टू प्रोटेक्ट यू। बट लगता तो इस हिसाब से चल रहा है कि इन्फेक्शन काफी लोगों का, पूरी पॉपुलेशन कहना था मुश्किल, लेकिन हाँ, लाइक सिग्निफिकेंट चंक को मेरे ख्याल से इन्फेक्शन होना है। ये बस ओनली खैर ये बनानी है कि इन्फेक्शन हुए तो माइल्ड फॉर्म आए और हमें बिना सिम्टम के या माइल्ड सिम्टम में ये ठीक हो जाए। और अगर तब तक आपका वैक्सीन आ जाता है, दैट माइट बी ऑफ सम हेल्प, बट हार्ड इम्यूनिटी टेक्स लॉन्ग टू कम एंड इट कम्स जब भी पॉपुलेशन का करीब 65% पॉपुलेशन को हो जाता है, उसके बाद हार्ड इम्यूनिटी आती है, जिसकी प्रोटेक्टिव फॉर एवरीबॉडी। तो सबको होगा नहीं, वो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, काफी लोगों को होगा। Okay. Precaution रखना बहुत जरूरी है. Absolutely. So that's all the time we have for this. We would request those viewers who sent us questions on Facebook, which we couldn't take up because of paucity of time, to resend those questions tomorrow between 2 and 3 in the afternoon. We'll try and take them up with the experts. Thank you, Dr. Parveer Agarwal, Dr. Aparna Agarwal, and Dr. Naresh Gupta for having joined us for this edition of Doctor Speak. बिल्कुल, अपने डॉक्टर्स का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतने महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया और दर्शकों का भी जुड़ने के लिए और डीडी न्यूज़ पर विश्वास करने के लिए, और लगातार जो ऑथेंटिक बात है, एक विश्वसनीयता, जब दर्शक इतना विश्वास करता है तो विश्वसनीयता की पुष्टि अपने आप हो जाती है। और हम सभी को बताना चाहेंगे कि सैटरडे संडे हमारा प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक, जो कि आपका अपना प्रोग्राम है, ये 2 से 3 बजे आता है और बाकी के डेज में हमारा प्रोग्राम 3:30 से 4 के बीच में आता है। तो हमसे जुड़े रहिए, हमसे सवाल कीजिए, कभी भी कोई भी परेशानी हो आप इस प्रोग्राम में अपने क्वेश्चंस के माध्यम से
पूछ सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन मत करिए और जो लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन कीजिए और मास्क जो है ये हमेशा इस तरह से अपने पास रखिए और इसे हमेशा लगाए रखिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।